دو، پھر جا کر صوم کا درس دو، اس لیے کہ یہی فلسفے اللہ، یہی خدا کا فلسفہ ہے۔ اس لیے پیارے یہ تاریخی بات ہے، دھیان دینا، جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، میں پوچھتا ہوں یہ بتائیے اگر کسی دن بیوی سے جھگڑا ہو جائے تو بتائیے ان کو پیار سے کہیں گے ذرا کھانا لاؤ نا؟ نہیں۔ اگر کوئی نہیں ہے، اگر امی ہے تو ڈر جائیں گے، کوئی نہیں ہے، اوہ ہو بس دیکھو نا ٹیمپریچر کتنا ہائی ہو جائے، اب تک کھانا نہیں لاؤ، یا پھر اپنے سے جا کر کے لے لیں گے۔ کیوں؟ وہ بیوی نہیں ہے؟ نہیں، تھوڑی سی تکلیف ہے ان سے، دھیان دیجیے، ایک پریکٹیکلی چیز دے رہا ہوں، تھوڑی سی تکلیف ہے، تھوڑی سی عداوت کا پہلو ہے، محبت تھوڑی دیر کے لیے ختم ہو گئی۔ کیا مطلب ہوا؟ محبت ہی دشمنی کو جنم دیتی ہے، عداوت ہی دشمنی کو جنم دیتی ہے، یہی نا مطلب ہوا۔ اب آپ بتائیے، آپ کہتے ہو، آپ پرنٹ میڈیا میں دیکھیے، منصف ہے، اعتماد ہے، جتنے بھی پیپر نکلتے ہیں یہاں، وہ سب میں یہی کہا جا رہا ہے جشن میلاد النبی اور ہم عید میلاد النبی، اور ہم اس طرح کی باتیں لکھ کر کے، کیا اس میں لکھی جا رہی ہے؟ لوگ آج نماز سے غافل ہیں۔ کون لکھ رہا ہے؟ جو خود نماز نہیں پڑھتا۔ خدا کی قسم آپ جا کر کے دیکھ لیجئے، میں نے تحقیق کروایا ہے، میری مطلب یہی عادت ہی ہے، آپ پہلے تحقیق کرواتا ہوں تب بولتا ہوں۔ خود نماز نہیں پڑھتا اور کیا کہتا؟ لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، یہ کر دیتے ہیں، وہ کر دیتے ہیں، دھیان دیجئے گا، اور عید میلاد النبی کے لیے فضول خرچی کرتے ہیں۔ بدتمیز گستاخ۔ ابو بکر صدیق کے سامنے کسی نے کہا تھا، توجہ سے سنی، ابو بکر صدیق کے سامنے کہا تھا، لا خیر فی صرفن، توجہ دیجئے گا، لا خیر فی صرفن، فضول خرچی میں بھلائی نہیں ہے۔ امیڈیٹلی فوراً جواب دیا تھا ابو بکر نے، ولا صرف فی خیرن، اسی لفظ کو بدل دیا تھا، کیا کہا؟ فضول خرچی میں بھلائی نہیں، تو حضرت نے جواب دیا جو بھلائی ہے وہ فضول خرچی نہیں۔ سبحان اللہ۔ بتاؤ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تم دولت خرچ کرتے ہو یار، وہاں گردنیں خرچ کیے تو حق ادا نہ ہوا، گردنیں خرچ کیے تو حق ادا نہ ہوا۔ عرب کی ان عورتوں سے پوچھو جو جنگوں سے لوٹ کر آنے والوں کی خبریں سنتی تھی، آواز دینے والا آواز دیتا تھا، اے عورتوں سن لو، تیرا شوہر مر گیا، تیرا بھائی مر گیا، تیرا بیٹا مر گیا، تیرا رشتہ دار مر گیا، عورتیں بیک زبان آواز دیتی تھی، ارے بول نبی ہے یا نہیں؟ نبی اگر ہے تو چھوڑ، مجھے میرے شوہر کی اتنی فکر نہیں جتنی فکر مصطفیٰ کی ہے۔ میرا نبی زندہ ہے، میرا نبی حاضر ہے، تو سب کچھ اچھا، سب کچھ اچھا۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اب یہ امتی ہے یا نہیں، یہ امتی ہے یا نہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اب پیارے وہ بات کہنے جا رہا ہوں جو آپ کو آپ کے دل میں لگے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے، پیدا ہوئے، آپ کو یاد کیا، کس کو یاد کیا؟ بولو، ساری امت کو یاد کیا، فاطمہ کو، حسن و حسین کو، خاندان کے لوگوں کو نہیں۔ کیا کہا؟ رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، امت کو یاد کیا۔ توجہ دیتے جائیے گا، سفر و حضر میں ہے امت کو یاد کر رہے ہیں، عمر کے کسی لمحے میں ہے امت کو یاد کر رہے ہیں، توجہ دیجیے گا۔ یہاں پر ایک البدایہ والنہایہ ابن کثیر کی والیوم 2 کی ایک حدیث پاک یاد آ رہی ہے، وہ حدیث پاک پیش کرتا چلو۔ خدا کی قسم، نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان بدتمیزوں کو کچھ نہیں معلوم ہے، رفعت شان مصطفیٰ کیا ہے، نبی پاک کے کمالات کیا ہے، یہ بچپن اور بچپن کی حقیقت نہیں سمجھ سکے، یہ بچپن کا مسئلہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے چھوٹے، یعنی ظاہری طور پر 1 سال کی عمر پاک سے لے کے 10 سال کی عمر پاک کے اندر کا زمانہ ہے۔ اب توجہ دیجیے گا، اور ہمیشہ کے لیے اپنے نبی کا خدا کی قسم کسی بھی اعتبار سے ڈیوائیڈیشن نہیں، نبی کو جتنا آج مانتے ہیں ان سے زیادہ کل مانیے گا، اس میں کمی مت لائیے گا، اس میں کمی مت لائیے گا، اس لیے کہ قرآن نے بھی کہا ہے کہ آپ کا ہرانے والا لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر ہوگا، تو آپ کا بھی ماننے والا، آپ کا بھی
जिस किताब से वो दलील मांगेंगे, मगर मांगना तो तुम भी याद रखना उस किताब को हम भी मांग सकते हैं, उस किताब से हम भी मांग सकते हैं। इसलिए नौजवानों सुनो, पूछते हैं क्या वो वही है? नबी पाक की तरफ इशारा करते हुए एक फरिश्ते ने दूसरे से कहा, दूसरे ने कहा नाम, हाँ वो वही है। अल्लाह अल्लाह, मुस्तफा की कितनी उम्र बताई मैंने? 1 से लेकर के बोलो 10 साल की उम्र पाक के दरमियान है, उसमें हदबंदी नहीं कर रहा हूं मैं, 10 साल की उम्र पाक के दरमियान है। तवज्जो दीजिएगा, अभी इतनी है, 40 साल के बाद जो नबूवत के बारे में बोलते हैं मिली मिली मिली, सुनो फरिश्ते आ रहे हैं और आने के बाद कहते क्या वो वही है? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, फरमाते हैं, तवज्जो दीजिएगा, फरमाते हैं जब उसने कहा हाँ वो वही है, हाँ वो वही है, तो आवाज आती है, एक ने दूसरे से कहा सुनो 10 आदमी को एक पलड़े पर रखो, एक तराजू लाया गया, एक पलड़े पर 10 आदमी को रखो और एक पलड़े पर ये 10 साल से 1 साल से 10 साल के दरमियान वाले कमालाते मुस्तफ़ा साहिब शान वाले मुस्तफ़ा को रखो, सुभान अल्लाह, सो मुस्तफ़ा को रखो। एक पलड़े पर नबी रखे गए, आका फरमाते हैं फवज़िनतुहुम, मैं उन तमाम पर भारी हो गया, सुभान अल्लाह, मैं इन तमाम पर भारी हो गया। 10 हट्टे कट्टे मर्द ताकत वाले एक पलड़े पर है और 1 साल से लेके 10 साल के दरमियान वाला शान वाला एक बच्चा है और वो एक पलड़े पर है। भारी हो गए मुस्तफा, अल्लाह अल्लाह, जब भारी हो गए तो फिर आवाज आती है, नहीं 10 से काम नहीं चलेगा। तवज्जो दीजिए, जिन्हो बेमेअतिन, 100 को एक पलड़े पर रखो, 100 को एक पलड़े पर रखो और इस 1 साल से 10 साल के दरमियान वाले को दूसरे पर रखो। तवज्जो दीजिए, नबी कहते हैं फवज़िनतुहुम वला लरजहतुहुम, मैं जब नापा गया तो मैं उन 100 पर भी भारी हो गया, सुभान अल्लाह, उन 100 पर भी भारी हो गया। रिफ़अत शान मुस्तफ़ा का अंदाजा कभी जमीन और आसमान की कोई ऐसी खल्क पैदा ही रब ने नहीं किया जो लगा सके। अगर अफजलुल मखलूकात में नबियों के बाद अबू बकर सिद्दीक की जात जब रिफ़अत मुस्तफ़ा को न जान सकी, अब कौन है 40 दिन वाले जो जान सके? उसके बाद कहते हैं फिर आवाज आई कि नहीं 100 से नहीं चलेगा, 1000 को एक पलड़े पर रखो। देखिएगा, इब्ने कसीर का हवाला दिया, वॉल्यूम 2 का हवाला दिया है मैंने, ये बिला वजह की बातें नहीं है। और इसकी सनद बता दूं, हाज़ा इस्नादुन जय्यदुन कवियुन, हाज़ा इस्नादुन जय्यदुन कवियुन, यानी इस हदीस की सनद निहायत उम्दा और कवी है। इब्ने कसीर फरमाते हैं, इब्ने कसीर फरमाते हैं, कोई इस पर ज़ौफ़ का फतवा लगाने वाले इब्ने कसीर पर फतवा लगाओ, और इब्ने कसीर को तुम मान चुके हो तो खा करके कई करता, खबरदार खबरदार। बहरहाल मैं पूछना चाहता हूँ, उसके बाद कहा 1000 को एक पलड़े पर रखो। आका कहते हैं मैं 1000 के ऊपर रखा गया एक पलड़े पर तो उन पर भी भारी हो गया। अब तवज्जो देते जाइए, फिर कहा 1 लाख को रखो, 1 लाख पर भी भारी हो गया। आका का एक जुमला याद आ रहा है, कान्नी अंजुरु इलैहिम यतसाक़तून अलैया, मैं उन तमाम को देख रहा हूँ कि लग रहा है जब मैं भारी हो रहा हूँ तो वो सब मेरे ऊपर कहीं न गिर जाए, मेरे ऊपर कहीं न गिर जाए। तवज्जो दीजिएगा, तवज्जो से सुनिए, 1 लाख पर भारी कहा जा सकता है, अल्लाह ताला कर सकता है ना, अल्लाह ताला हर शय पर कादिर है। बेटा अगर हर शय पर अल्लाह कादिर है तो मुस्तफा को जिंदा रखने पर क्यों कादिर नहीं है? मुस्तफा को जिंदा रखने पर कादिर क्यों नहीं है? यहाँ पर हर शय पर कादिर है, हर शय पर कादिर है। तेरी शय की कुदरत का मसला समझ ही में नहीं आ रहा है। जहाँ पर फंसने का हो हर शय पर कादिर है और जहाँ पर बसने का हो वहाँ पर कुछ नहीं कादिर है। इसलिए प्यारे सुनो, अल्लाह ताला हातिफ़े गैबी आवाज देते, हातिफ़े गैबी गायब से आवाज आती है, लौ वज़नतहु या लौ वज़नतहु बे उम्मतिही। सुनो, सारी उम्मत को एक तरफ रख दो। मेरा टॉपिक है कि ये उम्मत है या नहीं, ध्यान दीजिएगा, मेरा टॉपिक है कि ये अहले हदीस वहाबी ये उम्मत में भी दाखिल है या नहीं। प्यारे अगर ये उम्मत में दाखिल है तो ये हदीस पाक सुना देना। आवाज आती है, ये उम्मत को एक पलड़े पर रखो, सारी उम्मत को एक पलड़े पर रखो और इस 1 से 10 साल की उम्र के दरमियान वाले शान वाले को एक पलड़े पर रखो, सुभान अल्लाह, एक पलड़े पर रखो। चुनांचे कहते हैं मैं उम्मत के साथ एक पलड़े पर रखा गया तो उन तमाम पर भारी हो गया, सुभान अल्लाह, उन तमाम पर भारी हो गया। मुझे बताओ अहले हदीस, तुम उम्मत में दाखिल हो या नहीं? और अगर दाखिल हो तो उस पलड़े पर क्यों जा रहे हो? जिस पर हो उसी पर रहो, और उस पलड़े पर रह करके भी
मुस्तफ़ा की गुलामी में हिदायत रखा है, मुस्तफ़ा के अमल में हिदायत नहीं रखा। ध्यान दीजिएगा, मैं कहना ये चाह रहा हूँ, मैं ये करना, नमाज पढ़ना, ऐसा करना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े, ये पढ़े, वो करे, ये करे, ऐसा करे, वैसा करे, ये सब बोलते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अमल में तो हिदायत है, वरना अहले हदीस इसको भी लेकर के क्लिप पे डाल देंगे, देखो सुन्नी उलमा बोल रहे हैं मुस्तफ़ा के अमल में हिदायत नहीं। मैं बोलना चाह रहा हूँ अमल में हिदायत तो है ही है, मगर जो बेस तुम बनाते हो अमल का, वो बेस ये है कि मोहब्बत, ईमान, अकीदा कुछ भी नहीं है, अमल ही को लेकर के बैठो। नहीं, अगर ऐसा बेस है तो इसमें कुछ भी हिदायत नहीं है। सूरह आराफ आयत नंबर 158, नोट करो, बोलो सूरह आराफ आयत नंबर 158, बोलो सूरह आराफ आयत नंबर 158। अल्लाह सुब्हानहू फरमाता है वत्तबिऊहु लअल्लकुम तहतदून, ए लोगो, ए गुलामाने मुस्तफ़ा, नबी की गुलामी में रहो, हिदायत पर रहोगे। सुभान अल्लाह। क्या कहा कुरान ने? गुलामी इख्तियार करो। ये नहीं कहा कि नबी के सर का पढ़ो, नबी के सर का पढ़ो, अपने सर की तरह पढ़ ही नहीं सकते, नबी के सर का पढ़ो। अपने सर की तरह पढ़ने की कोशिश करोगे तो स्कूल से निकाल दिए जाओगे। ये सर है, नबी के सर का पढ़ो, नहीं हो सकता। अबे नबी पाक का लुआबे ध्यान पूरी उम्मत को बख्श देता है, नबी पाक का तसव्वुर पूरी उम्मत को बख्श देता है। एक सजदा मुस्तफा का, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सजदा पूरे मैदान महशर के गुनाहगारों को बख्श दिया है। खुदा की कसम, पूरी बुखारी और मुस्लिम को उठा लो, जब मैदान महशर कायम हुआ होगा, होने के बाद रसूल सजदे में जब सर गिराएंगे तो अल्लाह कहेगा ए हबीब सर को उठा लीजिए और जो मांगना है मांगे और जिनकी शफाअत करनी है कीजिए, आपकी शफाअत भी कबूल होगी। वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। नबी की हमसरी, नबी के हम पल्ला नहीं, इसीलिए मौला ने सिर्फ मोहब्बत मांगा है, सिर्फ इताअत मांगा है, सिर्फ गुलामी मांगा है। उनके जैसा तुम क्या कर सकते? कभी नहीं कर सकते। और सुनो, और अकीदा आपको ठोस कर दूं, सहाबा भी हमारे लिए आइडियल है ना, कि नबी का जो अकीदा है वही जन्नती है और जो सहाबा का अकीदा है वही जन्नती है। तो नबी एक पाक के बारे में तो हमने बता दिया, कुरान पाक की आयत करीमा सुन लीजिए और हमेशा के लिए याद रखिए। कभी पीस टीवी और मेराज रब्बानी वगैरह, तौसीफ रहमान वगैरह और जाकिर नानाज वगैरह के पीछे कभी मत जाना प्यारे। तवज्जो तो तवज्जो, ये उलमा है जो नबी के वारिस हैं, ये टाई वाले उलमा नहीं है जो तेरे दिन को टाई फिश कर रहे हैं। इसलिए सुनो, ये पतलून वाला आलिम नहीं है, ये मुस्तफा की बारगाह का खाक छानने वाला आलिम है, नबी की गुलामी वाला आलिम है। खुदा की कसम, 12 साल तक उस्ताद के डंडे खाने के बावजूद 10% भी अपने आप को आलिम नहीं समझता, 10% भी नहीं समझता हूं, और ये 10 दिन जाकर के 100% आलिम समझ रहे हैं। 10 दिन जाकर 100% आलिम समझ रहे हैं। यही है गुमराही, जितना झुकोगे उतना ही बुलंद होगे। सुभान अल्लाह। झुको, बुलंदी मिलेगी। इन तमाम से बाखबर रहो, इन तमाम से मुतवज्जे रहो, इन तमाम की बातों से दूर रहो, किसी क्लिप से मुतासिर मत हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा है, वो भी अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया कि मेरा अकीदा और मेरे सहाबा का अकीदा, सुभान अल्लाह, जुमले पे गौर कीजिएगा, मेरा अकीदा और मेरे सहाबा का अकीदा, यही जन्नती फिरका, यही जन्नती फिरके का अकीदा होना चाहिए, वही जन्नती फिरके की पहचान है। तो अब तो मैं एक ऐसी आयत पेश कर दूं जो हमेशा के लिए आपके लिए तौसीका बन जाए और दलील वासिफ और बुरहान वाज़िह बन जाए। अल्लाह सुब्हानहू फरमाता है सूरह बकरा आयत नंबर 137, बोलो सूरह बकरा आयत नंबर 137, अल्लाह सुब्हानहू फरमाता है इन आमनू